जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा आप जी दे बड़े वधिया मैसेज आ रहे ने कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। सत्संग सुन, वो भी सुनिया। तेरिया सारिया बीमारियां खत्म होने वालियां ने, मैं वो भी सुनिया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੀਚ ਪੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 777 555 444 222 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 777 ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਬਿਪਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਧ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਹਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਵੀ ਦੇਨੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। हे गुरुपा, मैं आपके चरणों में अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 1 अगस्त और दिन शुक्रवार है। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी, तुम्हारे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तुम हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लो। नहीं तो इस सत्संग को सुनकर अपना कष्ट कटवा लो। मैंने गुरुपा ने मुझे जितने भी मैसेज दिए उन सब में यही था, तो मैंने गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनने की पूरी कोशिश की है। गुरुपा कृपया कबूल करना। मैंने मेरी इस जो भी बीमारी पनप रही है इसे दूर करना। गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस करना, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, जीजू सभी को, भाभी को भी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा सबका भला करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा तो आपने बोला था कि सत्संग सुन लो, नहीं और कष्ट कटवा लो, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। तो मुझे ये भी क्या कहा था गुरुपा ने कि तुम्हारे 3 दिन भारी है, वीरवार शुक्रवार और शनिवार। गुरुपा बोल रहे हैं कि तुम्हारे 3 दिन भारी है, तुम अपना ध्यान रखना, पर डरने की जरूरत नहीं है। परंतु गुरुपा जब आप हमारे सर पर हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुजी। संगत जी मेरा पता नहीं क्यों 3 दिन हो गए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दिल करता है रोने को दिल करता है और मन बहुत उदास है, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों दिल करता है कहीं चले जाए। तो इसकी वजह से बहुत बुरा लगता है। कई बार मुझे अपने पति की वजह से बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने पति को इतना प्यार किया कि 14 साल उसकी वेट की अपने पति की, तो उन्होंने अभी मेरे साथ जो किया वो मुझे सोच सोच कर अच्छा नहीं लगता। गुरुपा बोल रहे हैं जो भी
तुम्हारे साथ कर रहा है उसे भूल जाओ, मैं खुद उन्हें देखूंगा गुरुपा। परंतु पिछली बातें जब ध्यान में आती है तो बहुत बुरा लगता है, पर मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरु जी। तो गुरुपा जो मुझे मैसेज दे रहे थे, एक दिन मैं हाँ, रसोई में अपना काम करते हुए, कल की बात है, मैं सुन रही थी सत्संग गुरुपा का। तो अचानक से मेरे पेट में कोई चीज़ गुरुपा ने जैसे कुछ अंदर से एकदम से हिला। जैसे ना हम लोग जब लेडीज लोग प्रेग्नेंट होती है तो आप तो जानती हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो हमारे अंदर कभी पाँव मारता है, कभी हाथ हिलाता है। तो ऐसे ही मुझे अनुभव हुआ कि कोई चीज इधर से उधर हुई है। तो मैं एकदम से वहीं खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा कि यह क्या हुआ, पता नहीं। अ, एकदम से मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ मेरे पेट में घूमी, एकदम से घूमी है। तो गुरुपा, पता नहीं आपने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है, जो आपने कल जय सब मेरे साथ हुआ गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना। पता नहीं पुराने सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि गुरुपा ऐसे ही जब किसी को ब्लेस करते थे तो उसे उस इंसान को मालूम हो जाता था कि ऐसे ही वो घूमते फिरते ही हमारी जो बीमारी थी काट देते थे। कईयों को तो भी पता मुझे कहना नहीं आता। कई संगत तो बताते हैं कि हमें अच्छे से पता चलता था कि हमारे पेट में से कोई चीज़ ऐसे घूमी है। तो गुरुजी, आपने पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काटा है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी दया रहम से ही हम खुश हैं गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। पता नहीं कभी-कभी मेरा मन डोल जाता है, पर मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर सरेंडर कर दिया है। आप ही देखिए, आप ही जानिए। जो आपने हमें दुख दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो आप हमें सुख दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, रोटी के लिए शुक्राना, घर के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है, परंतु पता नहीं क्यों मानसिक तौर पर मैं क्यों परेशान रहती हूँ, अपने पति की वजह से परेशान रहती हूँ। वो मुझे कुछ कहते नहीं हैं, परंतु जितनी उनसे बात करो उतनी करते हैं। वरना उनका मेरे साथ कोई मतलब नहीं है। ना हम मेरे साथ कहीं मुझे लेके जाते हैं, ना कोई मुझसे अपने दिल की बात करते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया। जब मैं हमारी लव मैरिज हुई है, जब मैं कुंवारी थी, तो जब हम एक दूसरे को चाहते थे, तो मैंने 14 साल इनके लिए इतनी तपस्या की। 14 साल मैं लगातार मंदिर जाती थी इनके लिए। और मैं अपने नंगे पाँव नहीं देखती थी, कुछ नहीं देखती थी। सुबह 4 बजे कई बार चली जाती थी। पता नहीं गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं बार-बार क्या बात करूँ गुरुपा। इन्होंने मेरा कुछ भी नहीं देखा। गुरुजी, ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा जिसका होना ना होना एक बराबर है, जो हमारे साथ कोई दिल की बात ही नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके पाँव की जूती बनकर रहूँ, परंतु मुझसे वो नहीं होगा गुरुपा। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया इन लोगों के लिए। अब जब ये मेरे बने ही नहीं, तो मैं अब इनके पाँव की जूती नहीं बनूंगी, चाहे मुझसे बात करें ना करें गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप ही मेरा सब कुछ है गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरु जी, आप ही इन लोगों की अकल ठिकाने लगा सकते हैं गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, इसकी अकल को ठिकाने लगाइए गुरुपा। ये जो लोग आपकी बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो मुझे उन लोगों को ऐसी जो आपकी सभी बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, बहुत सी आपकी बेटियां हैं जो बहुत ही दुखी हैं गुरुपा। सबको ब्लेस कीजिए। उस इंसान का पति का, जो हमारा पति हमारा साथ बात ही नहीं करता, उसका होना ना होना एक बराबर ही लगता है। तो गुरुपा, कौन सी खुशी रखें हम अपने मन में, कौन से हम अब पहने किसी के लिए, क्या करें गुरुपा। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता गुरुपा। पता नहीं क्यों इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को तबाह ही कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मुझे अपने पति अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। इन्हें अपने पेरेंट्स ही अच्छे लगते हैं। दिखावे के लिए जो कुछ करते हैं मुझसे करते हैं। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुपा। आप ही देखिए।
खुद के पास 2-2 मोटरसाइकिल गाड़ी साइकिल है और मैं मेरी बेटी टेम्पो में धक्के खाते हैं। मैंने इनसे बोला कि मुझे स्कूटी ले दीजिए, परंतु अभी-अभी गुरुपा ने मुझे प्लाट ब्लेस किया है। गुरुपा आपका शुक्राना, आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा, पर मन मन की शांति नहीं है। मैं और मेरी बेटी टेम्पो में धक्के खाते हैं, लोग भी बोलने लग गए हैं कि जे अलग-अलग से जाते हैं, सभी को दिख जाता है गुरुपा, बहुत बुरा लगता है। आप सब कुछ जानते हैं, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुपा। आप जैसा चाहें वैसा करें, परंतु मेरे पति की अकल को ठिकाने लगाएं गुरुपा। इसे समझाएं कि इसकी पत्नी और बच्चे से ज़्यादा इसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो यही सोच कर यहीं बैठी हूँ कि मेरे पति ही मेरा सब कुछ है, परंतु इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम इनके नीचे जूती, इनके पाँव की जूती बन गई हैं, परंतु अब नहीं सहन होता गुरुपा। मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया, जितना बुलाते हैं बोलती हूँ, नहीं तो ना सही। गुरुपा आपसे मैंने एक और अरदास की थी कि इनके ही फ्रेंड हैं जो जिनके घर में जागरण था गुरुपा। मैंने आपसे बेनती की थी कि अरदास की थी कि मेरी बेटी को वहाँ लेकर ना जाए, क्योंकि वहाँ मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी बेटी को अपने ससुराल में नहीं देखती, तो मुझे बोल रहे थे कि मैं इसे साथ लेकर जाऊँगा। मैं कुछ बोली तो नहीं, मैं चुप ही रही। मैं गुरुजी कहते हैं जहाँ चुप रह कर अच्छा हो सकता है तो वहाँ चुप ही रहो, मैं चुप ही रही। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरुपा आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो वहाँ मेरी बेटी को ना लेके जाए। मैं नहीं चाहती वो मेरे ससुराल के लोगों के साथ मिले। गुरुपा वो उन्होंने तो इसे पोती मानने से भी इनकार किया था, तो जो जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुपा। मेरा नहीं दिल करता मेरी बेटी वहाँ उनसे मिले। तो गुरुपा आपने मेरी वो अरदास कबूल की। आपने कल उनके घर जागरण था, शाम को 8 से 10 बजे तक, तो मेरे पति बोल रहे थे मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगा, तो 8-10 बजे हम वापस आएँगे, परंतु मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी उनके साथ जाए वहाँ। तो आपने वो दिन निकाल दिया गुरुपा। आपका बहुत कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी बेटी को वहाँ नहीं भेजा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं आपने मेरी अरदास कबूल की। गुरुपा प्लीज़ जहाँ मेरी जाऊँ वहाँ ही मेरी बेटी जाए। मेरे पति के साथ लोकल चले जाए, परंतु उनके रिश्तेदारों में वो ना जाए। गुरुपा इतनी कृपा करना, दया करना, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहे गुरुजी। जब मेरे पति इतने बड़े होकर और उसकी बहन इतनी बड़ी होकर अपनी माँ के साथ रहते हैं, तो मेरी बेटी तो भी 10 साल की है, वो भी मेरे साथ ही रहे गुरुपा। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। आपने मेरी अरदास को कबूल किया गुरुपा। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आज भी मेरे पति बोल रहे थे आज आपने बारिश कर दी, उसी टाइम बारिश आ गई, तो मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर नहीं जा सके। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। कल भी वो बोल रहे थे जाने के लिए, आज भी बोल रहे थे, तो आपने वो कैंसल करवा दिया गुरुजी। आपका अनंतम चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी आपने मेरी बेटी के लिए भी बोला था कि मेरी बेटी के लिए कुछ दिन पहले 24 घंटे कष्ट है, तो 24 घंटे मेरी बेटी के लिए कष्ट बोला था गुरुपा। तो मैंने आपके चरणों में अरदास की थी गुरुपा, आपने ही उसकी रक्षा करना है। तो गुरुपा मेरी बेटी की वहाँ तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसे थोड़ा सा बुखार आ गया था, तो वो उसे मैंने दवाई दी, तो उसके बाद वो ठीक हो गई थी। तो मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मा मुझे स्कूल में गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई थी। 2-3 बार उसने बताया कि मुझे वहाँ गुरुजी की फ्रेगरेंस आई थी। तो गुरुपा आपने वहाँ मेरी बेटी को ब्लेस किया होगा। बेटी आपकी है गुरुपा, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आप मेरे दिल की हर बात को पूरा करते हैं, परंतु हम इतने गंदे इंसान हैं जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम पर शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुपा। मुझे माफ़ करना, मेरे संध्या विला शुक्राना सत्संग को कबूल करना। इसी के साथ मैं अपने संध्या विला शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। गुरुपा अपने चरणों में मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ, इसे कबूल करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे आंटी अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, राज अंकल,
आपका कोटि कोटि शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं जल्दी से जल्दी। आपका, आपके बच्चों का, आपकी बेबी का गुरुजी आप उनकी हेल्थ ब्लेस करें, आपको भरपूर खुशियाँ दें, आपका ज़िंदगी खुशहालियों से भरा हो गुरुपा। इनके परिवार को खूब खुशियाँ देना, इनके परिवार को खूब हेल्थ ब्लेस करना, भरपूर खुशियों से इनकी ज़िंदगी को भरना गुरुपा। इसी के साथ अपना मैं शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये गुरुपा मैं अपने पिछले जन्म के किए हुए गलत कर्मों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यदि मुझे मेरे से कोई गलती हुई है, जब मेरे से कोई अबॉर्शन तो गुरुपा मैंने नहीं किया है। मैंने वैसे एक बार दवाई खाई थी, वो भी मैंने उसी वक्त खा ली थी, तो उससे तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई थी गुरुपा। तो मैं उसके लिए भी आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, जिसके मैं अपने पितृ देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि वो मेरी वजह से किसी कष्ट में है गुरुपा। उन्हें किसी उन कष्टों से निकालना, पितरों को अपने चरणों में लगाना गुरुपा। गणेश भगवान की से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी चूहों को मारा हो, जहाँ उनकी सवारी पर कोई कुछ किया हो, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अभी याद नहीं है, परंतु मुझे लगता है मैंने कभी ना कभी उनकी सवारी को मारा है, तो उसके लिए मैं आपसे कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। गणेश भगवान मुझे माफ़ करना। मेरे वीर बजरंगी, ममता में माँ काली के आपका कोटि कोटि शुक्राना। पितृदेव आपका शुक्राना, कुलदेवी मैया आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर करे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। मैं गुरुपा ने मेरे को 2024 अगस्त में जोड़ा था। मुझे 1 साल होने वाला है। तो गुरुपा की मुझे काफ़ी मेहर हुई। गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई कबूतर के रूप में दर्शन दिए, मोर के रूप में दर्शन दिए, 777, 333, 444, 111 के रूप में भी बाबा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग नंबर दी। और गाड़ी में भी मुझे जय गुरु जी भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। गुरुपा ने मुझे दिखाया 777, जो मुझे गुरुपा दिखाते हैं कि मैं अंग संग हूँ तेरे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना बाबा। और आपने मेरे बेटे अंकल का भी की तरफ से भी आपको बाबा शुक्राना, जो आप उसके अंग संग हो बाबा। बस मैं जब जुड़ी थी संगत जी, तो मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ में। और गुरुपा ने 1 साल अब होने वाला है मुझे, तो गुरुपा ने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक बेटर कर दिया है। संगत जी, मेरे बच्चे जो हैं गुरुपा को मानते नहीं हैं, पर जो है गुरुपा जो है जब परिवार के एक सदस्य का हाथ थाम लेते हैं, तो पूरे परिवार को गुरुपा जो है अपनी शरण में रखते हैं। गुरुपा ने सभी का अंग संग है, मेरे बच्चों के भी साथ और मेरे पति अंकल के भी अंग संग है बाबा। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं अभी सत्संग शेयर करते समय मुझे याद आया कि मैं एक बार बड़े मंदिर गई थी अभी लास्ट टाइम। तो वहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद करने के लिए मैं बैठी थी। तो हम 4 जने थे एक ही थाली में। तो पता नहीं मेरा मैं बस से गई थी, तो मेरे को जो है अजीब सा मन हो रहा था, वोमिटिंग जैसा। तो मैं वहाँ जैसे ही लंगर प्रसाद करने बैठी, तो मेरा मन अजीब सा हो गया था। मेरे से लंगर प्रसाद नहीं करा जा रहा था। और जो है मैंने जो बड़ी मुश्किल से एक चपाती खाई लंगर प्रसाद की, और एक जो है मैंने नहीं खाई, और एक चपाती जो है मैंने जो बाकी 3 आंटियाँ जी थी मेरे साथ में, मैंने उनको खाने के लिए दे दी।
संगत जी मुझे नहीं पता था ये मेरी ब्लेसिंग थी, क्योंकि मुझे गुरुपा ने मुझे ये अभी तक नहीं पता था कि मैंने ये गलती कर दी है, जो मैंने अपनी ब्लेसिंग जो है दूसरी आंटी जी को दे दी। ये हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए संगत जी। कि मेरे को गुरुपा ने सत्संग में सुनाया कि तूने बेटा अपनी ब्लेसिंग जो है दूसरों को दे देती है। मैंने वहाँ तुझे लंगर प्रसाद के लिए बुलाया था संगत जी, बाबा ने मुझे, और वहाँ गुरुपा जो है हमें लंगर प्रसाद के तौर पे अपनी ब्लेसिंग देते हैं, जो कि वो ब्लेसिंग जो है हमारे लिए ही होती है। तो हमने जो है वो लंगर प्रसाद जो है मैंने वो तीनों आंटी को अपनी चपाती दे दी कि मेरे से नहीं खाई जा रही थी उस वक्त। पर मुझे नहीं पता कि गुरुपा मेरे कोई कष्ट ही काट रहे थे, कि जिसको मैं चाहे धीरे धीरे ही खाती। गुरुपा मेरे कष्टों को ख़त्म कर रहे थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बाबा मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती को क्षमा करना बाबा, मुझे पता नहीं था। पर मैं अब बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी और ये ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपने सत्संग में सुनाया कि जिसको वो ब्लेसिंग मिलती है वो उसी के लिए ही होती है। कि एक आंटी जी ने भी ऐसे ही किया था कि उनको जो है वो लंगर प्रसाद के लिए गई थी, तो उन्होंने अपनी थाली किसी और को दे दी थी। तो हमें अपना लंगर, जब भी हम भी बड़े मंदिर जाएं तो अपना लंगर प्रसाद हमें खुद ही खाना चाहिए, चाहे कैसे भी खाएं, चाहे हमें धीरे धीरे खाएं, कोई बात नहीं, पर हमें अपना लंगर प्रसाद खुद ही ख़त्म करना चाहिए। संगत जी मैं बाबा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बाबा, और जो भी मैंने गलतियाँ की हैं बाबा, मैं उसकी गलती की क्षमा मांगती हूँ बाबा। और आप कहते हो कि अपने बेटे पुत्र से कह देना कि मैं हमेशा उसके अंग संग हूँ, और उसके आगे जो भी रुकावटें हैं उसको मैंने सब हटा दिया है, और उसकी राह मैंने अब आसान कर दी हैं बाबा। मुझे पता है आप उसके साथ हो, उसके अंग संग हो बाबा, और बस उसके करियर में हाथ थामे रखना बाबा। और जो मैंने आपके से 2 अरदास करी थी बाबा, एक अपने पति अंकल के लिए और एक अपने बेटे अंकल के लिए बाबा, बस वो मुझे पता है बहुत जल्द जो है मेरी ये दोनों अरदास भी पूरी होने वाली है। बस बाबा मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जिस तरीके से आप अपनी ब्लेसिंग और अपनी कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे और मेरे पति अंकल पे बनाए रखना बाबा, वैसे ही सभी संगत परिवार के में सभी बच्चों पे और सभी के परिवार में सभी की कष्ट हरना बाबा, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। और जो ये आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं इन पर भी अपनी ब्लेसिंग देना बाबा, और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख सोवा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कुटान कुटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें कुटान कुटान शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो ये सत्संग जो है आंटी या अंकल जी अपने चैनल पर शेयर करते हैं, उनका भी लख सोवा शुक्राना, और उन पर गुरु जी ढेरों खुशियाँ बरसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं टेलीपैथी के द्वारा, बेटा तूने शुक्राना नहीं किया, जल्दी से शुक्राना कर दे। और मैं इतनी आलसी हूँ ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि बस थोड़ा सा सर भी दुखने लग जाए तो बस मैं एकदम से टाल जाती हूँ कि भी चलो आज नहीं कल करूँगी। पर गुरुपाप जानी जहाने आपको सब पता है। पिछले कल रविवार के दिन जो है मैं मतलब के मैरिज पर गई थी, और मेरे गुरुपा ने मुझे मैरिज बहुत अच्छे से दिखाई, बहुत अच्छे से किया, और हमें सेफली घर भी पहुंचा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तो समझती नहीं है। हाँ गुरुपा मैं बहुत चली हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता जल्दी से कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल बात भी मुझे कई बार समझ नहीं आती है, तो अपनी इस जल्ली बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं तो रोज़ एक ही बात क्यों बोलती रहती है, तुझे समझ नहीं आता? जो बिना बोले भी समझ आता है, मैं तुझे उससे भी बेटर देना है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंत कोट शुकराना गुरुपा। मैं आपकी बेटी चली है, बहुत चली है, उसको सब माफ़ कर देना मेरे पा, माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कई बार। आज तो पता नहीं संगत जी, मतलब कि 4 अगस्त है, फिर भी मतलब कि मैं शुकराना सुबह से, आज मेरा सोमवार का भी व्रत है, मेरे गुरुपा का दिन है, और मतलब कि सुबह से देख रही हूँ शुकराना करना है, लेकिन मेरा सर फटा जा रहा है, पता नहीं क्यों गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी गुरुजी। और मतलब कि हो नहीं पा रहा था मुझसे शुकराना भी। अब जाके मैं देखो शाम के टाइम बैठी हूँ शुकराना करने के लिए, जबकि गुरुपा कहते हैं कि बेटा संध्या वेला का शुकराना जो है जल्दी से कर लिया कर। इस समय जो है 7:30 हो रहे हैं, और मैं मतलब कि अब बैठी हूँ। और आज बहुत ही भागा वाला दिन है। गुरुजी कहते हैं जल्दी से तेरे घर के संकट और कष्ट जो है मैं सब दूर कर रहे हैं। श्रावण का ये अंतिम सोम है, और तेरी अंतिम परीक्षा का भी अंत भी। आज तेरे जीवन की जो फाइल ओपन हो रही है उसे बरसों से तो बंद थी। जल्दी से बेटा शुकराना कर और आगे बढ़। अब कोई तुझे किसी भी तरह से नहीं रोक सकता। मेरे गुरुपा, जब से आपने मुझे थामा है, मुझ पर इतनी बेअंत आपने रहमतें की हैं जिसका मैं शुकराना तो कर ही नहीं सकती मेरे पास। शुकराना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कभी भी। ये सांस भी आपकी दी हुई है मेरे पास, इस सांस से भी आपका शुकराना। जब तक ये सांस चल रही है तब तक आपका शुकराना शुकराना शुकराना, अनंत कोट शुकराना। मेरे कर्मों कष्टों को कटवाने के लिए शुकराना, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुकराना, मेरे बच्चों और परिवार पर आए कष्टों को कटवाने के लिए भी शुकराना शुकराना शुकराना, अनंत कोट शुकराना। हर पल हर घड़ी का शुकराना गुरुपा। जो दिया उसका शुकराना, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना। कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं है, मेहर है तेरे लिए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सोने की कलम से तेरी मैंने किस्मत लिख दी है बेटा, जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी कौन इतना ख्याल रखता है? एक मतलब कि अपने फादर भी अपने इतना ख्याल नहीं रख पाते जितना हमारा गुरुपा रखते हैं। हर चीज़ का हमें मतलब कि सोचने से पहले, पलक झपकने से पहले हमें वो चीज़ दे देते हैं मेरे पास। और हमें क्या चाहिए संगत जी? हम एक शुकराना भी नहीं कर सकते, शुकराना भी नहीं कर सकते। मुझे माफ़ करना मेरे पास, मुझे माफ़ करना, अपनी झल्ली बेटी को माफ़ करना। मैं आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सभी परिवार के मायके परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को भी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, भाई भाभी को भी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे नए घर में हम आएंगे और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा कर जाएंगे। गुरुपा आप ही का घर है, आप आइए मेरे पास, आप ही बनवाओगे। आपकी झिल्ली बेटी को तो कुछ नहीं आता, तो आप ही बनवाओगे, आप ही करवाओगे मेरे पास सब कुछ। तुम्हें बहुत कुछ देंगे, संभाल कर रखना मेरी बेटी तो बहुत ईमानदार है। जो तेरा साथ देता है उसका किया तो कभी नहीं भूलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भी दाता आप ही की है गुरुपा, इसलिए मैंने तेरे घर आना चुना है। तैयारी कर ले गुरुपा, जल्दी से आ जाइएगा। और गुरुपा आपसे जो मैंने अरदास लगाई है वो भी आप ही पूरी करोगे। आपके नाती, दोनों नाती के लिए भी कन्या आप ही ढूंढोगे गुरुपा, आप ही करोगे उनका। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब आपको सौंप दिया है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, मुझे यात्रा करवाने के लिए भी शुक्राना, और मुझे
हिमाचल में शादी दिखाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना गुरुपा। जो हमने सोचा भी नहीं होता है ना संगत जी, वो भी गुरुपा हमें करवा देते हैं, हमारी सोच से पहले हमें वो चीज़ दिला देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और कितने मुझे मैसेज आ रहे थे दुर्घटना के भी, पति पर भी और बच्चों को भी। वो गुरु जी कहते मैंने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, उसके लिए कुटान 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, आपकी हर रहमतों के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, परिवार का साथ देने के लिए शुक्राना, उनके कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता, कुटान कुटान शुक्राना। कुल देवी मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन और शुक्राना। मैया माता रानी, भूल चूक माफ़ करना, सुख शांति बनाए रखना और हमेशा अपना आशीर्वाद देना। आपके आशीर्वाद की भी घर परिवार को सबको बहुत ज़रूरत है। सब पर अपनी मेहर बरसाना मेरी माँ। और नीम करोली बाबा जी के चरणों में राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, कुठान कुठान शुक्राना। मैं गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलूँगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। हम बहुत ही मतलब कि गलतियों के पुतले हैं, हम इंसान हैं, हम भूल भी जाते हैं गुरुपा, और हम कई बार साथ भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पा आपने जब हाथ थामा है तो कभी हमारा साथ मत छोड़ना, हमें सही रास्ता दिखाना, हमारे मन को साफ रखना, कभी भी हम किसी को दुख ना पहुंचा सके ऐसी हमारी सोच रखना मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सारे संगत जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राने को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सारे संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे रोज शुक्राने करने की दान बख्शी है, सेवा बख्शी है। सॉरी संगत जी, रोज शुक्राने करने की सेवा दी है, पर मैं इस सेवे से चूक जा रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी अभी परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं रह पा रहा है। तो गुरुपा से मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होके गुरुपा के चरणों में माफी मांगती हूँ कि हे गुरुपा, मैं आपके शुक्राने को किसी परिस्थिति बस नहीं लेके आ रही हूँ, बीच बीच में गैप हो जा रहा है। तो गुरुपा मुझे माफ करे, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है गुरुपा। बहुत ज़्यादा सिर में चक्कर आ रहा है और
थकान थकान सा महसूस हो रहा है। बहुत वीकनेस हो गया है गुरुपा। गुरुपा मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन टीके भी लगाती हूँ। तो गुरुपा आपकी इतनी लाचार बेबस बेटी है कि किसी अच्छे डॉक्टर से भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप सब जानते हैं गुरुपा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके से ही ठीक हो जाऊं, और जरूर होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास ही है संगत जी, और मैं गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ा है और अपनी बेटी बनाया है। तो मैं भी गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ। गुरुपा मेरे शारीरिक सारे कष्ट काटेंगे और मेरे परिवार बच्चे पे से भी गुरुपा सारे संकट को काटेंगे संगत जी। ये मेरा आत्मविश्वास है गुरुपा पे, क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा वीकनेस फील करती हूँ तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीके लेके ही ठीक हो जाती हूँ। गुरुपा मुझे ठीक कर देते हैं तो फिर मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा संगत जी। मैं जानती हूँ शायद गुरुपा कोई परीक्षा ही दे रहे हैं या पिछले बुरे कर्म ही कट रहे होंगे, इसलिए कुछ परेशानियां आई है। फिर भी मैं घबराती नहीं हूँ संगत जी। मैं गुरुपा पे विश्वास करके जी रही हूँ और गुरुपा सब सही करेंगे, ये मैं जानती हूँ संगत जी। क्योंकि संगत जी ज़्यादा दुख भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा तो सब देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में मेरी बेटी है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो हमेशा अंग संग रहते हैं संगत जी। तो गुरुपा सारे संगत के भी जो भी परेशानी हो, जो भी संकट हो, जो भी मनमुटाव हो किसी के भी प्रति, वो सारे को दूर करे और सबको गुरुपा ब्लेस करे, सबके दुख दरिद्र को दूर करे, सबके संकट को हरे, सबको आपस में प्रेम दे और सबके परिवार बच्चे खुश रहे। यही गुरुपा से अरदास है संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है, क्योंकि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी गुरुपा अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। हर समय अंग संग्रह के हिम्मत देते हैं संगत जी कि मैं हूँ तेरे साथ, तू सोचिया मत कर, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और जो जो तेरे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, उन सब को तू माफ कर दे, मैं उन सब को देख लूंगा। तो जी गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि संगत जी गुरुपा सब देखते हैं कि उनके बच्चे किस कष्ट में हैं, कौन किस तकलीफ में है, कौन क्या बोल रहा है। संगत जी हम सब जानते हैं, सारे संगत जन जानते हैं कि हम लोग गुरुपा की बेटी हैं।
और गुरुपा के दिखाए राह पे चलते हैं। हम लोग किसी का बुरा नहीं करते, हम लोग किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, पर शायद गुरुपा का परीक्षा ही है। जितनी ज़्यादा गुरुपा के चरण शरण में जाती हूँ, उतनी ज़्यादा इस संसार के लोग मुझे परेशान करते हैं, पर बचाने वाले मेरे गुरुपा हैं। हर बार बचा लेते हैं अपनी बेटी को। फिर से मुझ पे बहुत बड़ा बड़ा झूठा इस संसार के लोग लगा रहे हैं। संगत जी बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ब्लेम कर रहे हैं मुझ पे, पर मैं सच्ची हूँ। मैं जानती हूँ संगत जी कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, क्योंकि गुरुपा हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं संगत जी की कोई तेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी बुरा करे, पर तू किसी के बारे में मत सोचा कर, मत किया कर। तो जी गुरुपा, मैं आपकी हर बात को दिल से लेती हूँ और आपके कहे अनुसार करती हूँ, पर गुरुपा पता नहीं क्यों मेरे पूरे माई का परिवार टूट बिखर गया है संगत जी। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मायके परिवार मुझ पे बहुत ब्लेम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सब नेगेटिविटी में आ गए हैं। एक दूसरे के प्रति सबका रवैया बहुत गलत हो गया है संगत जी गुरुपा ने तो मुझे वहाँ से निकाल कर अलग शिफ्ट करवा दिए हैं। तो थोड़ी परेशानियां हैं संगत जी, क्योंकि नए जगह पे आई हूँ। पर सबसे ज़्यादा तो परेशान मैं इस बात से हूँ संगत जी कि मेरे मायके परिवार बहुत दुखी है, मेरी माँ बहुत परेशान है संगत जी। गुरुपा सब जान रहे हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी परिस्थिति ही ऐसी थी कि मुझे मायका में रहना पड़ा बच्चों को पालने के लिए संगत जी। और मैं मायके में कुछ दिन रह गई तो सब लोगों के आंखों में खटकने लगी थी मैं संगत जी। तो गुरुपा ने वहाँ से मुझे निकाल दिए, बहुत अच्छे जगह पे शिफ्ट करवा दिए हैं, रेंट के मकान दिलवा दिए हैं। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग है, मेहर है संगत जी। संगत जी यहाँ बहुत शांत माहौल है और सब लोग यहाँ के अच्छे हैं संगत जी, पर मैं मायके की चिंता में पड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ को एक वक्त का कोई भोजन बना के देने वाला नहीं है। बहू बेटे सब बाहर रहते हैं, सब ताना कसते थे कि बेटी को रखी हुई है, तो मैं भी वहाँ से चली आई संगत जी। मुझे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, तो मैं रेंट के मकान में शिफ्ट हो गई, पर मेरी माँ वहाँ भूखे प्यासे तड़प रही है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे पास आए, जहाँ मैं रह रही हूँ। जो मकान गुरुपा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ब्लेस किए हैं,
तो यहाँ भी आने से रोका जा रहा है उनको, और मैं वहाँ नहीं जा सकती अब संगत जी, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान के लिए आत्मसम्मान ही बड़ा है। जहाँ इज्जत न हो, जहाँ लोग हीन दृष्टि से देखे, जहाँ लोग धक्के मार के निकाले, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, मेरी माँ की रक्षा कीजिएगा और मेरे भाई भतीजे को भी सुबुद्धि दीजिए, ताकि मेरी माँ को प्रेम से सब रखे और मुझे माँ से मिलने से वंचित न करे, क्योंकि पापा तो संगत जी गुरुपा के चरणों में चले गए हैं। एक माँ है, माँ उधर तड़प रही है मुझसे मिलने को, मेरे पास आने को, और मैं इधर तड़प रही हूँ। संगत जी बहुत बुरा कंडीशन है संगत जी, क्योंकि मेरे माँ से कोई काम नहीं होता संगत जी। वो बहुत अस्वस्थ रहती हैं, यहाँ तक कि भोजन भी बना के नहीं खा सकती मेरी माँ। मेरी माँ ऐसे ही कुछ कुछ बाजार से खरीद के खाती है संगत जी। पर ऐसा कब तक होगा? और बेटा बहू ना आ रहे हैं, न मेरी माँ को मेरे पास रहने दे रहे हैं, और माँ पे बहुत ब्लेम लगा रहे हैं, मुझ पे भी ब्लेम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू बेटी के लिए मरती है। संगत जी, गुरुपा से आप लोग भी अरदास कीजिए कि ये सब लोगों का गुरुपा बोलती बंद कर दे, क्योंकि मेरी मजबूरी परिस्थिति गुरुपा सब जानते हैं। मेरी माँ कुछ मदद कर देती है यहाँ भी, तो वो भी इन लोगों को खटकता है संगत जी। आखिर मैं लाऊं भी तो कहाँ से कुछ लाऊं जहाँ से 2 वक्त की रोटी खा पाऊं, क्योंकि गुरुपा जॉब भी नहीं दिलवा रहे हैं अभी। तो अभी मेरा सारा खर्चा इस नए रेंट के मकान में भी मेरी माँ उठाई हुई है। इस कारण उनके बेटे बहू बहुत टॉर्चर कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा से अरदास है कि मेरी माँ का भी रक्षा करे और भाई भाभी भतीजे सबको सुबुद्धि दे, ताकि किसी के दुख पे हंसी ना उड़ाए, किसी के मजबूरी पे मजाक ना उड़ाए, एक दूसरे का दर्द समझे संगत जी। मैं सबको समझती हूँ, पर मुझे कोई नहीं समझता, क्योंकि मेरा पति ही मुझे नहीं अपनाते तो दुनिया क्या अपनाएगी। शायद ये भी मेरे पिछले बुरे कर्म ही गुरुपा काट रहे हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपा सब सही कर देंगे, पर बहुत देर कर रहे हैं। गुरुपा अब देर मत कीजिए, अब अपनी बेटी की रक्षा कीजिए। मेरी माँ भी आपसे जुड़ी हुई है, तो उनकी भी रक्षा कीजिए, और सब परिवार को, मायके ससुराल सबको एक धागे में जोड़ के सुंदर सा परिवार बनाइए गुरुपा, क्योंकि सारे आप ही के बच्चे हैं। सबके दिल में एक दूसरे के प्रति मिठास दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। संगत जी, मैं संगत आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संतों में शेयर करें, ताकि मेरे और मेरे माँ के ऊपर जो संकट मंडरा रहे हैं, जल्द से जल्द
गुरु पा तक पहुँच जाए और हम लोग सुखी जीवन जिए, क्योंकि बहुत देर होते जा रही है। मेरे मायका परिवार में बहुत खटास आ गया है। मेरी माँ के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। मेरी माँ बहुत रोती भी लगती है। संगत जी, संगत जी, गुरु पा मेरी माँ को खुश रखे, हर संकट से दूर रखे और सारे संगत जन के माँ को खुशहाल रखे गुरु पा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने को आगे बढ़ा रही हूँ और संगत आंटी जी, प्लीज मेरे सत्संग को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बीच बीच में गैप कर देती हूँ। संगत जी, संगत आंटी, मुझ पे बहुत भारी अभी संकट मंडरा रहे हैं। जल्द से जल्द शेयर करके गुरु पा तक ये शुक्राने को पहुँचाइएगा, ताकि मेरी अरदास गुरु पा तक पहुँच जाए और गुरु पा मुझ पे मेहर करे, मेरे मायके परिवार पर मेहर करे, सबको सुबुद्धि बख्शे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय सारे संगत जी, सबको खुशियाँ ब्लेस कीजिए। गुरु पा, जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा।